Good evening, students. Today, one more topic, that is phrase versus clause. Since primary school, you have been studying about phrases, clauses, sentences. But what I feel that phrases and clauses, sentences, these are the very important part of grammar, and sometimes we have knowledge, but then sometimes we have to brush up our knowledge. So here I am talking about the difference between phrase and clause and sentence. What are they, right? You need to have, that's a very important part if you really want to do something for competitive exams, for other exams. You need to know what is the basic difference between phrase, clause and sentence. But before proceeding, a concluding line I'm just telling you, so then you just keep in mind that a sentence is the biggest unit. That's a group of words. Sentence is group of words, phrases are group of words, and clauses are also group of words. So what's the difference? Sentence is a group of words which makes complete sense. A group of word which makes complete sense means which must be a complete sense. It's not necessary that sentence must be very lengthy. Birds fly, that is complete sentence. Why? Because picture is clear in your mind that birds fly. So this way sentence and independent clause are almost same, because independent clause is also does also have subject and predicate. How I'm going to tell you further, right? So this is the difference. So just keep in your mind what you need to remember. You need to remember this, the phrase group of words. Group of words is the basic, is the soul of phrase and clause and sentence, because without group of words no phrase or clause or sentence can be imagined, right? So this is, please take care and keep in mind. But difference is that when group of word does not, group of word is not made with subject and predicate, that is just group of word, which that combination oftenly used here and there is called phrase. Repeating, group of words, and that particular group of words or that combination oftenly combination is oftenly used here and there to enhance the meaning of the sentence is called phrase. And that group of word does not have subject and predicate, that is called phrase. Now clause. Clause means subject and predicate. Very important necessary part of clause is subject and predicate. Subject is doer, predicate is verb, you know. Then sentence is against group of words. Group of words which uh, do not have subject and predicate, phrase. A group of word which does not have, which a group of words which have subject and predicate is clause. A group of words which do have subject and predicate, and complete senses sentence. This is the basic difference. Now let us see what is this. A phrase is a group of words acting as a unit. Group of word which acts as a unit, very important, that does not include a subject and a predicate. No subject and predicate is found in a phrase. Whereas a clause is a group of words acting as a unit of cause that
does have both a subject and predicate. Means clause means the structure of clause is a subject and predicate, which is very important, right? Now let us see in detail what is the subject and predicate, right? So here I am telling you, that is, first this summary is very useful. Please read it carefully. What is the summary? Phrases and clauses are both used to build sentence. Of course, without phrases or clauses or without group of words, no sentence can be imagined. But a phrase is a group of words acting as a unit that does not include a subject and predicate. Without subject and predicate, just group of words is called phrase. But with subject and predicate, a group of words is called clause. And a phrase can never stand by itself. Means a phrase cannot stand alone, but clause can, right? And clause can stand alone. Now let us see in detail. In grammar, a phrase is a group of words that act together as a single unit but don't contain the things needed to form a sentence. That is not form of sentence, because a sentence must have at least a subject and a predicate. That is sentence. So phrase is just used to enhance the meaning of a sentence, right? But clause may the sentence. Why? Because clause also have a subject and predicate, and sentence also the same. Now phrases may contain nouns and verbs, but they cannot function by themselves as complete sentences. Phrases may contain nouns and verbs. It may, in the phrase, there may be a noun or verbs, but that is not active. How? We are going to see in further, right? If used alone, a phrase would be a sentence fragment. Phrase is what? Sentence fragment, and not a sentence. For that's a एक हिस्सा है वो, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस का एक पार्ट जिसमें अभी आप मोटे तौर पे ये समझो, जिसमें ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज. द फ्रेज शाइनी gold watches. The phrase shiny gold watches is clearly not a complete sentence as it does not have a predicate. Shiny gold watches, ये noun तो है इसमें watches, लेकिन adjective भी है, लेकिन predicate नहीं है, इसलिए ये phrase है. There are several kinds of phrases in English and each serve different grammatical functions. नाउन फ्रेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउन फ्रेज, अ नाउन एंड द वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन सच एज एन आर्टिकल, ए, एन और दी. मतलब अगर किसी सेंटेंस में ए, एन और दी किसी फ्रेज में लगा है, एंड एडजेक्टिव आर कॉल्ड नाउन फ्रेज, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन, है ना, तो या प्रोनाउन. एग्जाम्पल, द स्मेली सॉक्स. सॉक्स क्या है? कॉमन नाउन है. स्मेली क्या है? एडजेक्टिव है. द आर्टिकल है. और ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नो सब्जेक्ट. तो चलिए हम सॉक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेडिकेट नहीं है, और इसीलिए ये द स्मेली सॉक्स नाउन का एक्सटेंशन है, और इसीलिए इसको नाउन फ्रेज कहते हैं. अब जीरंड फ्रेज होता है. दूसरा फ्रेज क्या होता है? जीरंड. जीरंड मतलब आप मन में तुरंत याद रखो कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे स्लीपिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब क्या है? जीरंड है ना. अ जीरंड इट्स ऑब्जेक्ट्स. जीरंड क्या है? इट्स ऑब्जेक्ट्स
एंड एनी मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स तो अभी बताती हूँ आपको. एग्जाम्पल, हिटिंग नेल्स विद अ हैमर. अब हिटिंग शुरू में आ गया तो ये जीरंड है, पर फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेडिकेट नहीं है. हिटिंग नेल्स जो हम दीवार पे लगाते हैं, विद अ हैमर. विद क्या है? प्रिपोजिशन है, आर्टिकल है, हैमर नाउन है. तो हिटिंग नेल्स विद अ हैमर, ये क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, और स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, इसीलिए इसको जीरेंडियल फ्रेज कहते हैं. तो दो चीज़ें बार बार याद रखो. एक तो किसी भी फ्रेज में वर्ब नहीं होगा, वर्ब को ही प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट नहीं होगा. और दूसरा, उस सेंटेंस में या तो आईएनजी फॉर्म से होगा या नाउन फॉर्म से, तो वो उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपने आप में एक कंप्लीट है. आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो इस तरह के वर्ड्स को, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, लेकिन उसमें कोई एक्शन होता दिखाई नहीं देता. फिर वर्ब फ्रेज, जैसे नाम से पता है कि फ्रेज जो है वो किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से स्टार्ट होगा. अ मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स दैट एक्ट विद इट टू फॉर्म अ प्रेडिकेट. जो उसमें अब वर्ब है, तो अब भी मैंने कहा प्रेडिकेट या वर्ब नहीं होता, तो फिर वर्बल फ्रेज क्या है? जो प्रेडिकेट क्या बोल रहा है? अ मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स दैट एक्ट विद इट टू फॉर्म अ प्रेडिकेट सच एज हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब्स. याद रखो कि वर्ब फ्रेज में क्या है होता है? हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब होता है. हैज़ बीन पीसफुली स्लीपिंग. अब हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब. बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब, राइट. पीसफुली क्या है? एडवर्ब है. और स्लीपिंग क्या है? मेन वर्ब है, वर्ब है मेन, और आईएनजी फॉर्म में है. तो ये वर्ब जैसा है, लेकिन काम दिखाई नहीं दे रहा. क्यों? हैज़ बीन पीसफुली स्लीपिंग. कौन, क्या, क्लियर नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज. और फिर उसके बाद है प्रीपोजिशनल फ्रेज. अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसकी पोजीशन? नाउन की प्रीपोजिशन, नाउन के पहले. इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एडिशनल मॉडिफायर्स. क्या है? इट्स ऑब्जेक्ट्स और एडिशनल मॉडिफायर्स, जो दूसरे सब वर्ड्स को, मॉडिफायर्स का मतलब होता है दूसरे वर्ड्स जो उस सेंटेंस का उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग चेंज कर दे, उसको मॉडिफायर कहते हैं. अ ब्यूटीफुल, स्मार्ट, जेनरस लेडी. तो अब इसमें क्या हो गया? ब्यूटीफुल एक अलग चीज़ है लुक वाइज, है ना. स्मार्ट भी है. जेनरस बहुत अच्छी, काइंड दिखती है फेस से. तो ये, और लेडी, तो ये सारे लेडी के लिए वर्ड्स है, इसको मॉडिफायर्स कहते हैं. मॉडिफायर एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है. एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है माई फेवरेट मूवीज़, है ना. तो ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, ऑफ से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए प्रिपोजिशन है. माई पजेसिव प्रोनाउन है. फेवरेट दैट्स एडजेक्टिव, और मूवीज़, है ना. तो ये प्रिपोजिशनल फ्रेज है. फिर एडजेक्टिव फ्रेज. एन एडजेक्टिव, पहले एडजेक्टिव होगा, जैसे रियली स्मॉल, है ना, रियली स्मॉल, तो एडजेक्टिव. और फिर मॉडिफायर्स कुछ भी हो सकता है, एंड इट्स मॉडिफायर, इसमें एडजेक्टिव है रियली स्मॉल, राइट. तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है. एग्जाम्पल्स बता देती हूँ. एग्जाम्पल्स है रनिंग. अब रनिंग है तो आपको इमीडिएट क्लिक होना चाहिए कौन सा है? जीरेंडियल फ्रेज है. रनिंग लैप्स अराउंड द जॉगिंग ट्रैक इज़ रियली गुड एक्सरसाइज, है ना. फिर द टायर्ड ओल्ड कैट, तो ये नाउन फॉर्म है यहाँ तक. क्यों? टायर्ड भी है और ओल्ड है. कैट कैन नॉट कैच माइस एनी मोर, वो अब और माइस नहीं पकड़ सकती. थिंकिंग क्विकली, ये कौन सा है? जीरेंडियल फ्रेज है ना. क्विकली वी पुट आउट द फायर विद अ होज. फिर हिज लास्ट क्रिसमस गिफ्ट अब टू हर वॉज अ पार्ट्रिज इन पियर ट्री. अब हिज लास्ट क्रिसमस गिफ्ट, तो गिफ्ट के पहले, गिफ्ट तो क्या है? नाउन है, पर उसके ये नाउन फ्रेज है. लास्ट मतलब आपने एक वर्ड ऐड कर दिया, क्रिसमस,
दूसरा जो क्रिसमस की और गिफ्ट, इस तरह से। तो लास्ट क्रिसमस गिफ्ट क्या है, नाउन फ्रेज है। फिर शी क्विजिकली रब्ड हर चिन, है ना। अब यहाँ पे देखो, क्विजिकली एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है ये, रब्ड हर चिन, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये फ्रेज समझ में आया, मैं रिवाइज कर रही हूँ उसको, हम अभी आगे और भी बनाऊंगी मैं इसके वीडियोस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ब्रॉडली अगर मोटे तौर पे, अभी आप इतना ध्यान रखो, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। एंड देर आर following variety of phrase: noun phrase, verb phrase, gerundial phrase, prepositional phrase, adjectival phrase। तो जो जिससे शुरू होता है, नाउन फ्रेज नाउन से शुरू होगा, प्रिपोजिशनल फ्रेज प्रिपोजिशन से, वर्ब फ्रेज वर्ब से स्टार्ट होगी, जीरेंडियल फ्रेज जीरेंड से स्टार्ट होगा, आईएनजी फॉर्म मतलब, और एडजेक्टिवल फ्रेज एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा, रियली स्मॉल, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब उसके बाद ये मैंने इसके एग्जाम्पल। अब आते हैं हम क्लॉज। क्लॉज क्या है, अनलाइक अ फ्रेज, अ क्लॉज डज हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसमें नहीं होता सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पर क्लॉज में होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एंड द क्लॉज मे बी एबल टू स्टैंड अलोन, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो अपने आप में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एज अ कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉज माइस ईट चीज़, माइस ईट चीज़, तो चूहे चीज़ खाते हैं, ये अपने आप में बिल्कुल क्लियर है। माइस सब्जेक्ट है और ईट क्या है, प्रेडिकेट है, तो माइट ईट चीज़ हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ईट एंड वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एज अ स्टैंड अलोन, राइट सेंटेंस। चलिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अभी मैंने बिगनिंग में जब वो यही बताया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह होता है, वाइल डिपेंडेंट क्लॉज के नॉट। डिपेंडेंट क्लॉज कैसा, इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस जो इफ़ और व्हेन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें कंडीशंस होती है और भी वर्ड्स होते हैं, तो इफ़ वाले सेंटेंसेस या कंडीशनल सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज होता है, देखेंगे अभी हम। तो इसको कहते हैं टिपिकली अ डिसेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद अ कनेक्टिंग वर्ड सच एज अ कंजंक्शन और अ प्रोनाउन that connects it to the rest of the sentence. For example, independent clause, I am allergic to peanuts, है ना। अब since I am allergic to peanuts, एक में आपने कहा आई एम, तो ये इंडिपेंडेंट है, आई एम एलर्जिक। आपने कहा सॉरी आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, मुझे पीनट्स से एलर्जी होती है। लेकिन डिपेंडेंट क्या है, अगर आपने सिंस लगा दिया, सिंस आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, तो फिर क्या आगे, क्या सिंस लगाया तो कुछ रीज़न देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। दो तरह के होते हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, आई लाइक मीगन एंड शी लाइक्स मी, दीज आर द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक है आई लाइक मीगन, मोहन कुछ भी, एक ये पूरा है, एंड शी लाइक्स मी, ये भी अपने आप में पूरा है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, वी हैड टू रीड द बुक ट्वाइस। अब ये आपने बता, अगर आप सिर्फ इतना बोलते वी हैड टू रीड द बुक ट्वाइस, मुझे दो बार पढ़ना, हमें दो बार बुक पढ़ना पड़ी, तो फिर रीज़न क्यों, तो फिर बिकॉज आपने दिया, बिकॉज इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग। तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो आई हैड टू रीड द बुक ट्वाइस, है ना, बिकॉज इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। फिर अब देखिए एग्जाम्पल्स है, आई डोंट लाइक डिसम्बर, ठीक है, तो क्यों, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज टू कोल्ड, है ना। तो रीज़न जब बिकॉज दिया आपने, तो ये जो बिकॉज वाला, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज टू कोल्ड, ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आई डोंट लाइक डिसम्बर, तो क्यों नहीं करते भाई डिसम्बर पसंद, ऐसा। ये बाकी सेंटेंस आप देखना, फिर पढ़ के मुझे बताना।
अब है क्लॉजेज और फ्रेज में डिफरेंस. हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड फ्रेज? इट इज़ एक्चुअली प्रिटी सिंपल. कुछ भी नहीं है. क्या है? वही, क्लॉज इंक्लूड्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, whereas a phrase is missing a subject. आप तो subject और predicate याद रखो कि subject and predicate are found in clause. In phrase, no subject and predicate is found, right? So if you can find a subject or predicate in a group of words, you are dealing with phrase, right? If you can't find, and not a clause. For example, 10 sleepy sheep. अब 10 स्लीपी शीप वॉट, ना सब्जेक्ट तो भी नहीं है, सब्जेक्ट तो है, प्रेडिकेट नहीं है, तो सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है. क्यों? क्योंकि एक फ्रेज है. भाई आप 10 स्लीपी शीप कहीं पर भी लगा सकते हैं. इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डज नॉट इंक्लूड आ वर्ब. अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बार बार मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आपको, क्योंकि सब्जेक्ट है या नहीं है. सब्जेक्ट मतलब डूअर, कोई काम करता हुआ दिखाई देना चाहिए. तो हमने इसमें 10 स्लीपी शीप, फिर क्या? ना सब्जेक्ट तो है ही नहीं वो, क्योंकि वो डूअर तो है नहीं, कोई काम नहीं कर रहा ना, एक्शन नहीं कर रहा, इसीलिए वो सब्जेक्ट नहीं है. विच मीन्स इट डज नॉट हैव प्रेडिकेट. विदाउट अ प्रेडिकेट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मस्ट बी अ फ्रेज. ये मैंने बताया, रिपीट कर रही हूँ. फिर उसके बाद एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा है. द चिल्ड्रन लाफ्ड, है ना. अब ये फ्रेज है कि क्लॉज है, तो नेचुरली आप कहेंगे कि ये क्लॉज है, क्योंकि दोनों बातें क्लियर, चिल्ड्रन भी क्लियर है और लाफ्ड हंस भी रहे हैं. तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कुड स्टैंड अलोन, अपने आप में स्टैंड करता है. अब इसको देखते हैं. बाय टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट रेसिपीज़. अब क्या? तो ये फ्रेज है. क्यों? देयर इज़ नो सब्जेक्ट. मैंने बताया सब्जेक्ट मतलब कुछ करना चाहिए, एक्शन, एंड नो प्रेडिकेट इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट डज नॉट मेक सेंस व्हेन यूज बाय इटसेल्फ. ठीक है, चलिए. अब एज वी एट लंच, ये क्लॉज है ना, वी है और एट है. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट वी एंड प्रेडिकेट एट. दिस इज, हम खाते हैं, ये क्लियर है. एंड दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज दैट बिगिंस विथ कंजंक्शन एज, है ना, एज लगा है ना, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है. इट नीड्स टू बी यूज with an independent clause in order to form the sentence, right? तो ये है इसमें है. अब इसको एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम और डिस्कस करेंगे. फ्रेजेस एंड क्लॉजेज आर इंग्रेडिएंट्स. इसको ध्यान से सुनो. इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज़ टू मेक कंप्लीट सेंस. मतलब फ्रेजेस और क्लॉजेज जनरली हम यूज़ करते हैं ताकि सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग आए. अब सेंटेंस क्या है? तो a sentence is a collection of words that include a subject and a predicate and can be used to express a complete thought. For example, मैंने दिया था birds fly, इसमें भी coincidentally वही example है. A phrase is a group of words that does not have a subject and predicate. A phrase cannot stand alone and does not express a complete thought. Example was working yesterday. कुछ भी नहीं आगे पीछे पता है तो उसको कहते हैं फ्रेज, है ना. तो ये क्या कह रहा है? फ्रेजेस आर टिपिकली यूज टू बिल्ड अ सेंटेंस. सेंटेंस को बिल्ड करने, मॉडिफाई पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए फ्रेजेस को यूज़ करते हैं. क्लॉजेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अ क्लॉज में और मे नॉट बी एबल टू स्टैंड अलोन. कभी खड़ा हो कैसे? फॉर एग्जाम्पल द इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे ग्रीन इज़ माई फेवरेट कलर, कैन फंक्शन एज अ कंप्लीट सेंस. भाई समझ में तो आ रहा है कि मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है. वेयर एज डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज green is my favorite color, cannot, right? Green is my favorite color. Why? Then you have to give reason. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे ही आपने because लगाया तो फिर same sentence cannot stand alone, है ना. तो typically there is no real difference between a sentence and independent clause. We simply use the term independent clause to describe a part of कॉम्प्लेक्स. वही बता रहे हैं कि सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज में
बहुत फ़र्क कुछ नहीं होता है, एक ही है, आप ऐसा मान के चलो थोड़ी देर के लिए। अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट रीड कैट्स म्यू कुड बी ईदर अ सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट, ये इन्होंने दिखाया। एंड डॉग्स बार्क, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसमें, कैट्स म्यू एक, दूसरा इंडिपेंडेंट डॉग्स बार्क दूसरा, है ना, और यहाँ पर भी ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आज के लिए इतना है, और फिर आप भेजिए अपनी क्वेरी, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो अभी मैं ख़त्म करने के पहले बता दूँ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड सेंटेंस। तो रैपअप चलिए करते हैं हम। सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट नहीं है और प्रेडिकेट नहीं है। सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ काम करता हुआ दिख नहीं रहा। वो अगर प्रेडिकेट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्रेडिकेट मतलब वो कुछ काम कर रहा है, डूअर है ना, तो फ्रेजेस में नहीं होता। क्लॉजेस में सब्जेक्ट, क्लॉज कंटेन्स सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसमें दोनों होता है। अच्छा, फ्रेजेस के टाइप्स हमने देखे कि फ्रेजेस क्या है। तो नाउन फ्रेज है ना, एडजेक्टिवल फ्रेज, जीरेंडियल फ्रेज, राइट, और भी एडवर्बियल फ्रेज, राइट। तो ये सारे फ्रेजेस में प्रिपोजिशनल फ्रेज, तो उसमें प्रिपोजिशन से स्टार्ट होने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। नाउन फ्रेज में नाउन से स्टार्ट होगा, वर्ब फ्रेज में वर्ब से स्टार्ट होगा, एडजेक्टिवल हो तो एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा। और क्लॉजेस भी दो तरह के होते हैं। क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं? क्लॉज होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट कैसे बना सकते हो? आपने कहा आई वेंट टू कॉलेज, पर तो ये तो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में कंप्लीट है, आई वेंट टू कॉलेज। पर आपने कहा एज आई वेंट टू कॉलेज, तो ये फिर क्या हुआ? क्यूरियोसिटी आ गई। तो जैसे ही कि अच्छा जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची तो क्या, तो एज आई वेंट टू कॉलेज, यहाँ अगर आपने बोला या रीच टू कॉलेज, तो यहाँ पर आपको ये क्या हो गया? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ होना चाहिए, इस तरह से है। तो आप पढ़ के देखो, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।